in collaboration with the Time Institute. You may access our previous webinars through our recently launched YouTube channel named GTBIT Finishing School. A brief about GFS with the vision of holistic development of students, which is the cornerstone of personal, academic, and career success. We envisage having a positive and enhancing influence on every student, faculty, and staff member during their stay and course of time and experience at GTBIT. Started in 2012, it has grown a lot outside the campus and currently has a team of 15 dedicated executive student members and our counselor Dr. Seema Singh. Our today's speaker, Mr. Atul Gupta, is the product head, study abroad courses at Time, MBA in marketing and international business, BSc honors from DU. He has 10 plus years of experience in guiding and mentoring students for study abroad and various career avenues after class 12, graduation, etc. He has worked with organizations like Aaj Airtel, etc. Hello, sir. Welcome. You may start with your presentation. Okay, thank you, Sachin. Welcome, everyone. So let us start with today's topic, which is the GRE exam. Okay, so we'll talk about the GRE exam, when to start, what to do, and all those kind of stuff. What kind of programs are available? So we'll take care of all those things. And in the meanwhile, whatever queries that you get, you can ask your queries in the chat box. Okay, so the chat box is also visible to me, and I would be able to uh, clear your queries accordingly also. Okay, so welcome again. So let us start with our seminar on the GRE. So what is the GRE exam all about? See, GRE exam is mostly given by uh, graduates or people who are graduating. 90% of the people who are taking the GRE exam, they all are graduating that year. They take up the GRE exam. Okay, mostly when you are in a student life, that is the time that you give your GRE exam. Okay, it is conducted by a body which is known as ETS, Educational Testing Services. Achha, the GRE exam is having two major parts. Okay, though they are three, but the two major parts are quant and verbal. So they make up your GRE score. It starts from a minimum of 260 points and it goes up to a maximum of 341. Sai Gaurav, are you not able to see the presentation? Is the presentation visible to all of you? Yes, sir. Yes. Uh, okay, fine. Because Ronnie is writing no and Sai is saying please share presentation. Slight confusion, but I think it should be available. Okay, if it is available, so let me go through it again. So in the GRE exam, how it works? Okay, so there are two sections. One is quant and another is verbal. Okay, verbal reasoning and quantitative reasoning. So minimum that you can score is 260. That is why when you are having minimum score of 130 in verbal ability and 130 in the quantitative, so equal representation. So verbal and quant, they have equal representation. The maximum that you are scoring is 340. Okay, that means 170 in quantitative reasoning and 170 in verbal reasoning. So again, equal representations. Now what happens when we as Indian students go for this exam? Okay, तो हमें चैलेंज कहाँ पे आता है? Actually, if you have attended the GMAT exam presentation, again there the two sections were again quant and verbal. That were the main sections in which we have to focus on. Okay, so here also in GRE these are the two main sections on which we have to focus on. Quant and verbal make up your score on the GMAT as well. The quant and the verbal are the one which make up your score on the GRE exam also. Okay, and they have got equal representations. In the GMAT, we saw that Indians are too good in the quantitative, so they are able to crack the GMAT exam easily. जैसे आप लोग, most of you would be the engineering candidates. Okay, so for you, almost 50% of the paper is done.
on that day also I spoke about this, that 50% of our paper is done. What we need to work on is on the verbal part. Okay, is on the verbal part where we need to put in a lot of efforts. क्योंकि हमारा जो भी other examination that we have prepared till now in our lifetime in the Indian scenario, there the focus has been always been a greater focus on the quantitative front rather than the verbal front. Okay, the focus on quant is more than the verbal. Verbal में बच्चों का रहता है कि that थोड़ा सा करेंगे and it is done, हो जाता है type of scenario. But here in GRE, what would happen? GRE is an examination in which students are going for research. Okay, आगे पढ़ाई करने में भी research के लिए जाना चाहते हैं. And there are a lot of areas which will see the programs. There are a lot of programs which have lot of mathematical usage. काफी सारे यूसेज होते हैं मैथमेटिकल. आपने एक शब्द सुना होगा when we are talking about study abroad, that is known as STEM. That is science, technology, engineering and maths. STEM कहते हैं उसको. Okay, science and maths. तो जब बच्चे बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो इफ यू आर गोइंग फॉर स्टेम प्रोग्राम्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स वाले प्रोग्राम्स में जब आप जाते हैं तो there you stand a better chance of getting an OPT for a longer duration. OPT is what? That is known as optional practice / training. Okay, OPT. तो उसमें क्या होता है कि आपको जो स्टे बैक के नाम से आपने सुना होगा ना कि बच्चा कोर्स करता है बाहर जाके फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करता है तो उसके बाद में उसको स्टे मिलता है, स्टे बैक ऑप्शंस मिलते हैं. That stay back is known as OPT. तो उसमें बच्चा क्या करता है? He stays there and in that process he or she is studying or he or she is looking forward for job. ठीक है, या तो बच्चे स्टडी करते हैं या फिर they are looking forward for job during this OPT time. Clear? तो जब हम GRE के थ्रू जाते हैं तो we get an additional and GRE के थ्रू into the STEM programs तो हमें एक additional OPT मतलब stay back का ऑप्शन मिलता है. This is a very good point for taking up the GRE exam. Do we get OPT when we are planning for management programs? Do we get OPT when we are planning for management programs? Can anyone share their views on the chat box? Do we get OPT? आप लोगों में से किसी ने कुछ रिसर्च करा है about this? When we are planning for management programs, जैसे हमने last time वाला देखा था GMAT का presentation, so are we getting OPT during that also? Anyone? Sachin, Animesh, Jagjot, Vivek. Do we get OPT during management programs also? I'm just asking how many of you have gained some knowledge about it. Parth is saying no. Okay. Friends, we do get OPT when we are going for management programs also. It varies from 6 months and it can go up to 3 years. Okay. जैसे कि UK, United Kingdoms. So UK is giving an OPT for 3 years, whether you go for a STEM program or whether you go for a management program. Okay. US is giving OPT for 6 months for the MBA programs and 1 year for the MIM programs and 3 years for the STEM programs. So you do get OPT. OPT का फायदा इसलिए होता है, why do colleges give OPT in management programs also, is that supposedly Parth has made it to a particular college. Okay. And after the college he plans to do a job. और उसने उस समय अपने कॉलेज के टाइम पे कोई प्लेसमेंट नहीं लिया या whatever happened, but he will get an opportunity to apply for a job when he is staying back there. So he will get a stay back period to search for a job, or if he wants to study further, he has the time to apply for another program in order to increase his stay back.
ठीक है, तो काफी बारी ज्यादातर बच्चे जो क्या करते हैं, दे स्टडी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टे बैक, ठीक है, या फिर जॉब ले लेते हैं, तो बोथ द थिंग्स आर अवेलेबल। ओके, क्लियर। स्कोरिंग ऑन द जीआरई एग्जाम हैपेंस ऑन अ 1 पॉइंट इंक्रीमेंट। ओके, जैसे आपका स्कोर हो सकता है 325, 326, 327, और मिनिमम स्कोर क्या होगा जीआरई पे, मिनिमम इज 260, 300 हो सकता है, 301 हो सकता है, बट देयर इज नो 0.5। ओके, 300 1.5 करके कोई स्कोर नहीं होता। ओके, GRE scores are valid for 5 years. Okay, again, just like the GMAT, they prefer the scores which are taken in the last 3 years. Okay, clear. Now let us come to what comes in the GRE test. Okay, in the GRE test, there are three major areas, which is first is analytical writing. Okay, in analytical writing, you get two essays to be written. One is issue based and another is argument based. दो essays मिलते हैं 30 minutes के each. Okay, and your total scoring is 0 to 6. The total scoring on the essays is, for both the essays together, it is 0 to 6. Okay, and again 4 and above is a good score. If you are getting 4 and above, that is a good score. Coming to the important sections. Okay, analytical writing हो गया. Importance कितना है? I should get a score of more than 4. That is the importance of the analytical writing section. Clear? तो आपको दो essays लिखने हैं with 400 and above points, and you are able to clear off this. Okay. Sir, where can we get admission after clearing GRE, like CAT for management? What about GRE? Aryan, I will answer you. GRE is something like, if you want to make the tip of a needle to an aircraft, okay, there are lot of programs throughout the globe. There are programs for everything, for which if you want to study abroad, तो आपको GRE का स्कोर चाहिए होगा. It is from making a tip of needle to making an aircraft. तो बहुत सारे. Yes, for engineering graduates, so engineering graduates are the ones, जो 80% to 85% are the engineering graduates only who are taking the GRE exam. सबसे ज्यादा GRE एग्जाम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स देते हैं. ओके, और डाउन साउथ चले जाओ तो वहाँ पे साउथ इंडिया में तो थोड़ा सा एक कल्चर और भी ज़्यादा है कि स्टूडेंट वुड लाइक टू स्टडी फर्दर, ओके, इंटरनेशनली, या फिर देयर आर टू मेजर रीजंस टू इट. एक तो एजुकेशन अच्छी मिल जाती है, दूसरा in order to get a stay back or get a PR into a certain country. So there are a lot of engineering graduates, क्योंकि बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं बाहर डाउन साउथ इंडिया में, प्लस जो MBBS कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो they all give the GRE exam. Okay, IELTS और TOEFL दोनों जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट. ओके, जैसे कि सपोजेटली किसी को, अब आर्यन की मदर को, if he goes abroad, Aryan goes abroad, stays there, and he wants to study in an international college, तो आर्यन को क्या पता GRE का एग्जाम देके वहां पे जाके एक एडमिशन चाहिए होगा. नो, आर्यन्स मदर ऑल्सो वांट्स टू गो टू पर्टिकुलर कंट्री लाइक US, तो उनको भी IELTS या TOEFL चाहिए हो सकता है. रीजन बीइंग, IELTS and TOEFL are English language test. Before a candidate goes to a foreign country for a longer duration, खाली घूमने के लिए नहीं कह रहा, this is not for a tourist visa. If you're going for a longer duration, they want the person should understand the English language. English language नहीं आएगी तो that becomes difficult. तो आर्यन तो अपने इंजीनियरिंग कोर्स के बाद कोई मास्टर MTech वगैरह करने के लिए ही डिड अ GRE एग्जाम. ओके, IELTS एंड TOEFL के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन वो इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं होते जो एंट्रेंस दे देते हैं थ्रू IELTS एंड TOEFL. बट GRE एंड GMAT आर दी गुड एग्जामिनेशंस दैट द स्टूडेंट शुड टारगेट. उसके दो फायदे होते हैं. एक, आपको एडमिशन में प्रेफरेंस मिलता है. दूसरा, आपको जो है स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं. ओके, Bani is asking, is GRE valid for every country? Answer is yes. GRE is valid for every country. India में भी there is a college ISB. अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो आपको GRE देना पड़ता है.
GMAT or a GRE. If you are supposedly Bunny or a candidate who's staying in for a country like what I should say, if you are staying in UK or Canada and you want to apply to the Indian IITs, okay, the Indian IITs, then you need to take the GRE exam, क्योंकि वहाँ पे कनाडा में आप आईआईटी का जो जेई एग्जाम है वो तो देंगे नहीं, तो आपको इंडिया में आईआईटी के अंदर आने के लिए आपको जीआरई का एग्जाम देना. So there are a lot of colleges in India also which are accepting the GRE exam, be it for their BTech or be it for their MTech programs also, or even for PhD programs also. If you want to make it to MIT, you should score something around 330 and above. 335 plus would be a good score. Okay. INISB means Indian School of Business. Okay. So moving further. So there are 2 essays to be written. There are 2 sections on the verbal ability. Okay. There are 2 sections on the verbal ability and there are 2 sections on the quantitative reasoning. Okay. तो GMAT में हमने देखा था एक सेक्शन था, यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं. GMAT में एक IR का सेक्शन भी था, यहाँ पे IR नहीं है, इंटीग्रेटेड रीजनिंग के नाम से कोई एडिशनल सेक्शन नहीं है. लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या 2 एसेस, 2 वर्बल के सेक्शंस और 2 क्वांट के सेक्शंस हैं. क्लियर? मूविंग फर्दर, इसके बियॉन्ड भी आपको एक सेक्शन मिलता है जिसको हम कहते हैं ज्यादातर, दैट इज नोन एज an experimental section, so which could be either verbal or which could be either quant. So this is how your essays are timed. 1 घंटे का सेक्शन है essay का, score 0 to 6 and it increases by 0.5. 4 and above you get in the essay and you are done with it. ठीक है. Moving further, what comes in the verbal reasoning. Verbal reasoning बहुत important section है क्योंकि हमारा हाथ टाइट, थोड़ा सा टाइट रहता है इसमें, थोड़ा नहीं काफी टाइट रहता है इन दी वर्बल रीजनिंग. तो वर्बल पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है. वर्बल के काफी सारे फायदे हैं. इन द इंटरनेशनल एग्जाम्स क्या क्या हैं? एक तो आप वर्बल एबिलिटी का अच्छा स्कोर लेके आते हैं. दूसरा, आईएलटीएस एंड टोफल जब देना पड़ता है तो आपने अच्छी से वर्बल की प्रिपरेशन करी है तो यू आर एबल टू डू वेल इन द आईएलटीएस एंड टोफल एग्जाम आल्सो. ओके. थर्ड, verbal is also having an equivalent usage in your quantitative ability section. ठीक है. जब क्वांट पे आएंगे तब उसका वर्बल का और समझाते हैं थोड़ा सा. ठीक है. तो वर्बल में कितने क्वेश्चंस आते हैं? यू गेट 20 क्वेश्चंस एंड ड्यूरेशन इज 30 मिनट्स. तो 2 सेक्शंस हैं. एवरी सेक्शन इज हैविंग 20 क्वेश्चंस एंड ड्यूरेशन इज 30 मिनट्स. तो 30 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं इन दी वर्बल एबिलिटी. इसमें आता क्या क्या है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, टेक्स्ट कंप्लीशन आता है और सेंटेंस इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो दीज आर दी 3 एरियाज: रीडिंग पैसेजेस, टेक्स्ट कंप्लीशन एंड सेंटेंस इक्विवेलेंस. ओके. स्कोर वेरी करता है फ्रॉम 130 एंड इट गोज अप टू 170 पॉइंट्स. ओके. और क्वेश्चंस का ब्रेकअप भी दिया हुआ है. 6 क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट कंप्लीशन, 4 on sentence equivalence and 10 on critical reading question. जो आपको रीडिंग पैसेज वाला दिया हुआ है, that is what. Okay. क्वांट के अंदर भी 2 सेक्शंस हैं. वर्बल में 2 सेक्शंस, क्वांट में भी 2 सेक्शंस. ओके. सो यू हैव गॉट 2 सेक्शंस और 20 क्वेश्चंस आते हैं. ओके. Per section you are getting 20 question and for those 20 question time given is 35 minutes. हमें वर्बल में कितना टाइम मिला था? 20 क्वेश्चंस, टाइम गिवन इज 30 मिनट्स. क्वांट में कितना टाइम मिल रहा है? 20 क्वेश्चन, टाइम गिवन इज 35 मिनट्स. मतलब इसमें क्वांट भी मुश्किल आता है, वर्बल भी मुश्किल है और क्वांट भी मुश्किल है. ओके. बोथ दी सेक्शंस आर डिफिकल्ट इन दी जीआरई एग्जाम फॉर अस. प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है. Both these sections are difficult. आता क्या क्या है इसमें? Arithmetic, algebra, geometry and data analysis. Okay. These are the 4 areas in which the questions are tested on. Plus again scoring 130 से 170 points तक आती है. तो questions का breakup क्या आता है? 8 quantitative comparisons के questions आते हैं, 9 problem solving and 3 data interpretation के question आते हैं. So this is how the breakup works. ओके. मूविंग फर्दर, चलो अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कैसे आता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला सेक्शन रहा
फर्स्ट सेक्शन इज द एसेस। तो जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इसमें फिक्स्ड है, इसमें आप अपने सेक्शंस चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से। द सेक्शन ऑर्डर वाली फैसिलिटी नहीं है इसमें। तो आपने पहला सेक्शन दिया अपना एसे वाला, तो 1 आवर इज डन एंड यू टेक अप दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो उसके बाद में आपको ब्रेक मिलता है 10 मिनट्स का, यू गेट अ 10 मिनट्स ब्रेक। आफ्टर दैट 10 मिनट्स ब्रेक यू विल नाउ गेट द वर्बल सेक्शन। Okay, no sorry, you will now get any of the sections which could be quant and verbal, कुछ भी आ सकता है। So any permutation of quant and verbal plus ये 4 sections का कुछ भी permutation combination हो गया plus 1 additional section which could be quant/verbal। तो total आपके 5 sections आएंगे, ठीक है, total 5 sections आएंगे which could be 2 verbal or 3 quant, or it could be 2 quant and 3 verbal। 5 sections आएंगे। After essays I will be getting 5 sections which would be of 2 verbal or 3 quant, or 3 verbal and 2 quant। Any permutation combination of quant and verbal, ये जो 3 और 2 quant के verbal की जो भी आ रहे हैं तो उसका any permutation combination, it could be quant verbal quant verbal quant, it could be verbal quant verbal quant verbal, okay, it could be verbal 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 quant quant, it could be quant quant quant, so at any permutation combination like this, okay, clear? All of you can register again free of cost at this website which is known as ets.org. The registration is free. There is a change in the GRE exam fees, now it is $205। मैं जरा अपडेट करना भूल गया, इट इज नॉट $205। अगेन यू कैन चेंज द वेन्यू एंड द डेट ऑफ द एग्जाम, ओके, फॉर विच दे आर गोइंग टू चार्ज यू $50 फॉर एवरी चेंज। जैसे आपने वेन्यू और डेट दोनों चीज चेंज करा तो आपको कितने पैसे लगेंगे, $100 एडिशनली लगेंगे, ओके। इट इज ऑल्सो कंडक्टेड एट द प्रोमेट्रिक सेंटर्स एंड इट इज एन कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट इंटरसेक्शनल, ओके। कैसे होगा, जैसे मैंने क्वांट का सेक्शन दिया, तो जो क्वांट का सेक्शन मैं कर रहा हूं तो वो कंप्यूटर अडेप्टिव नहीं है। आई गेट माय फर्स्ट क्वांट सेक्शन क्वांट 1, सो दैट इज नॉट कंप्यूटर अडेप्टिव। तो मेरी पास चॉइस है कि मैं कौन सा सेक्शन करना चाहता हूँ। तो 20 क्वेश्चंस हैं, ड्यूरेशन है कितना, 35 मिनट्स। तो मेरी मर्जी है कि मैं कौन से क्वेश्चन को करना चाहता हूँ। मैं फर्स्ट को करना चाहता हूँ, 5th को करना चाहता हूँ, 18th को करना चाहता हूँ, 20th को करना, आई कैन डू एनी क्वेश्चन, ठीक है। और मैं क्वेश्चन छोड़ भी सकता हूं। अगर मेरे से 20 में से 17 क्वेश्चंस हुए तो आई कैन लीव इट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो आई कैन लीव इट। नाउ आई विल गेट अ स्कोर फॉर दिस सेक्शन। तो जो मेरा स्कोर होगा उस सेक्शन के हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस जैसा होगा, तो माय नेक्स्ट सेक्शन, जो मेरा नेक्स्ट सेक्शन आएगा क्वांट का, दैट वुड बी अडेप्टिव टू माई परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस सेक्शन जो मैंने अभी करा है। तो क्वांट 1 की परफॉर्मेंस इज गोइंग टू डिसाइड कि क्वांट 2 का सेक्शन कैसा जाएगा। इट इज गोइंग टू बी इजी, डिफिकल्ट और मॉडरेट, दैट वुड बी डिपेंडेंट ऑन माई परफॉर्मेंस ऑन क्वांट 1, क्लियर। तो क्वांट 1 में इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। क्वांट 2 का लेवल क्या डिसाइड होगा इज बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस ऑन क्वांट 1। अब जब क्वांट 2 करता हूं मैं, तो क्वांट 2 में भी इट इज अगेन अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो मैं अपनी मर्जी से कोई सा भी क्वेश्चन पिकअप करके कर सकता हूँ। सो दिस इज अ चैलेंज, ये चैलेंज है जीआरई एग्जाम के अंदर में कि आपका जो है सेक्शन वो कंप्यूटर अडेप्टिव होता है, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है आपका नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, क्लियर। सेम हैपेंस इन द वर्बल एबिलिटी आल्सो। वर्बल 1 में आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से द लेवल ऑफ द नेक्स्ट वर्बल लेवल, वर्बल 2 उसका लेवल डिसाइड होगा, ठीक है, क्लियर। तो सेक्शंस क्या क्या आ रहे हैं, एसे राइटिंग, क्वांट एंड वर्बल। 2 एसेज आते हैं 30 मिनट्स में, 2 एसेज करने हैं आपको। उसके बाद यू विल गेट 5 sections total, out of which it could be 3 quant or 3 verbal or 3 quant and 2 verbal, or 3 verbal or 2 quant, clear।
So this is how it works. Who can give the exam? Working professional, graduates and undergraduates. जैसे आप सभी लोग आज की तारीख में अंडर ग्रेजुएट्स हैं, so you can give the exam. Okay. And when you should give the exam? अभी एग्जाम देना कब चाहिए? Again, when you are applying for a B school or when you are applying for a college internationally, okay, तो आपको उस कॉलेज के इनटेक से 1 साल पहले एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगा. ओके, क्लियर? तो उससे पहले आपके पास आपका स्कोर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अ कॉलेज विच इज एडमिटिंग स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट ईयर. जैसे आप अगर फाइनल ईयर में हैं, जब प्री फाइनल ईयर में है, तो आप नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे ना, समवेयर अराउंड जुलाई अगस्त 2021 में, तब आप ग्रेजुएट हो गए. तो आपको आपका कॉलेज कब स्टार्ट होना चाहिए बाहर की कंट्री में? इट शुड स्टार्ट इन समवेयर अराउंड सितंबर 2021, जिसकी वजह से कोई ब्रेक नहीं हो आपकी स्टडीज के अंदर में. ओके, तो इन दैट सिनेरियो आपको इस साल आपका जीआरई का एग्जाम देना है, which could be in the month of September, October, November 2020. Clear? September, October, November 2020 में आपको आपका GRE का एग्जाम देना है. If you are graduating next year. If you are graduating in 2022, ठीक है? If you are graduating in 2022, तो in that case हमें क्या करना है? हमें अपना एग्जाम दिसंबर 2020 से पहले या फिर फरवरी मार्च 2021 में देना है. क्लियर? ये हम एक एडवांस प्रिपरेशन करके रखते हैं, जिससे कि मेरे पास मेरा जीआरई का एग्जाम एडवांस में आ जाए, एंड देन आई स्टार्ट अप्लाइंग टू द कॉलेजेस. क्लियर? दो स्टूडेंट्स को आर ग्रेजुएटिंग दिस ईयर, जो बच्चे इसी साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो भी एग्जाम्स देंगे अपने कॉलेज के, ठीक है, फॉर देम they should also give the exam by September, October, November 2020. Okay, इसको लिखने का फायदा क्या है? This is your application would be for round 1 for a college or a university. Round 1 कॉलेजेस अलग अलग राउंड्स में एडमिशन्स लेते हैं, अलग अलग साइकिल्स में एडमिशन्स लेते हैं, जिनको राउंड्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज ने जब फर्स्ट टाइम अपना एप्लीकेशन विंडो ओपन करा, तो दैट इज नोन एज राउंड 1. दैट इज नोन एज राउंड 1. तो उस समय क्या होता है, अगर कॉलेज के पास 1000 सीट्स हैं, ओके, फॉर द स्टूडेंट्स, सो ऑल दी 1000 सीट्स आर ऑन ऑफर. अब उसमें से कॉलेज क्या है, 60 to 70% ऑफ द सीट्स जो है फिलअप कर लेता है इन राउंड 1. क्लियर? एंड जो स्कॉलरशिप का पैसा होता है, ओके, सपोजिटली द कॉलेज वांट्स टू गिव अवे 1 crore रुपीज एज स्कॉलरशिप. तो जो 1 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप को देना चाहता है स्टूडेंट्स को, दैट 1 crore रुपीज इज एलिजिबल ओनली फॉर राउंड 1 एप्लीकेंट्स. खाली उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो राउंड 1 में अप्लाई कर रहे हैं. इफ यू आर अप्लाइंग इन राउंड 2 विच स्टार्ट्स यूजुअली इन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ओके, इन दैट राउंड यू डू नॉट गेट स्कॉलरशिप्स. इन दैट राउंड you do not get scholarships. ठीक है? साथ के साथ नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल कम हो जाती हैं और एप्लीकेंट्स भी कम होते हैं, लेकिन रेशो ऑफ सीट्स वर्सेस एप्लीकेंट राउंड 1 में अप्रोक्सीमेटली 8% के अराउंड रहता है. ओके, नाउ जो कंपटीशन है वो टफ हो जाता है. ओके, जो कंपटीशन है वो टफ हो जाता है इन राउंड 2. तो सीट्स जो है कम हो जाती हैं रिलेटिवली ज़्यादा, और एप्लीकेशंस होती हैं राउंड 1 से रिलेटिवली कम. तो लेकिन उसमें जो रेशो होता है, सिलेक्शन रेशो, द परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन इज लेस. ठीक है? सो दिस इज द चैलेंज फॉर राउंड 2. द टेस्ट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज. संडे और नेशनल हॉलीडे को छोड़ के साल में किसी भी दिन दे सकते हैं, एंड इट हैपेंस इन 2 स्लॉट्स. एक मॉर्निंग स्लॉट होता है 11 AM का, और एक इवनिंग स्लॉट होता है PM का. ओके, सो दीज आर 2 स्लॉट्स दैट आर अवेलेबल फॉर द जी एग्जाम. ओके, मूविंग फर्दर,
What are the advantages of GRE? Okay, it is required for admission into masters, MBA and PhD programs. Okay, it is required for masters, MBA and PhD program. See, there are 1,000 plus B schools, MBA programs which accept the GRE exam. Even like Harvard, IE, INSEAD, MIT, Stanford और many other. लेकिन अगर मैंने इसमें मैं आई वुड टेल यू वन थिंग, इफ यू हैव गॉट एनी वन पर्टिकुलर ऑप्शन कि मुझे मैनेजमेंट पढ़ना है या फिर आई हैव गॉट अ थिंग इन माय माइंड which is very very clear. Supposedly someone says that I want to study artificial intelligence. Okay, so that student should clearly take up the exam for which he or she is looking forward for. जिसे मैनेजमेंट करना है वो GMAT लिखें, जिसे ओनली एंड ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है और दो स्टूडेंट शुड टेक द GRE एग्जाम. दोनों काफ़ी सारे कॉलेजेस कहते हैं दैट बोथ आर इक्विवेलेंट, लेकिन एक्चुअल जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है तब उसके अंदर मैनेजमेंट वाले कॉलेजेस GMAT को प्रेफरेंस देते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वो GMAT को प्रेफरेंस देते हैं. सो इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर द मैनेजमेंट प्रोग्राम्स और आप बहुत क्लियर हो कि मेरे को मैनेजमेंट ही करना है, तो काइंडली टेक अप द GMAT एग्जाम. अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई ठीक है आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर बोथ द प्रोग्राम्स, तब आप जो है GRE लिख सकते हो. ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू कैन राइट द GRE. तो दे विल आस्क यू कि आप मैनेजमेंट करना चाहते हो, देन व्हाई हैव यू रिटन द GRE एग्जाम. ओके, तब आपके पास आपका आंसर रेडी होना चाहिए दैट आई हैव रिटन GRE एग्जाम बिकॉज आई एम अप्लाइंग फॉर टू डिफरेंट फील्ड्स. मैं दोनों को ट्राई करना चाहता हूँ बिकॉज आई गॉट एन इंटरेस्ट इन बोथ. क्लियर? तो आपको कितना टाइम चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द GRE? यू रिक्वायर एटलीस्ट 3 months ऑफ प्रिपरेशन टू गेट अ गुड स्कोर इन द GRE. जैसे GMAT में उस दिन हमने बात करी थी कि हाउ मच टाइम, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोचिंग दैट आई रिक्वायर फॉर अ गुड प्रिपरेशन. देखो आजकल लॉकडाउन का टाइम है, ठीक है, तो उसमें क्या है, स्टूडेंट्स घर पे हैं, कोई ट्रैवलिंग टाइम नहीं है अभी आज की तारीख में. हाँ, एंटरटेनमेंट का टाइम भी जो है कम हो गया है, इधर उधर घूमने का टाइम भी कम हो गया. तो दिस इज द टाइम दैट यू शुड यूटिलाइज. अभी 2 महीने में ऑनलाइन क्लासेस कवर अप हो जाती हैं. ओके, 2 months ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड 1 month फॉर मॉक, एंड यू आर डन विद योर एंट्रेंस प्रिपरेशन, चाहे वो GMAT की है चाहे वो GRE की है. अदरवाइज इट यूजुअली टेक 4 months, और हम जो कोर्स ड्यूरेशन देते हैं वो 6 months की देते हैं. ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे नहीं कर पाते उसमें वन शॉट में, तो 6 months की कोर्स ड्यूरेशन देते हैं. तो अगर आपको सेकेंड टाइम भी चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाता है एक और बारी चांस टू प्रिपेयर एंड गिव योर एग्जाम्स अगेन. क्लियर? What is a good score to get into a good college, good university? 330 and above is a good score. 325 प्लस पे भी सिलेक्शन होता है, लेकिन एक अच्छा स्कोर कितना है, which is 330 and above. Okay. Now this 330 is a function of both quant as well as the verbal. अच्छा, there is one more point. When you are applying to a university, और उस प्रोग्राम के अंदर में काफ़ी सारा डेटा एनालिटिक्स है या फिर मैथ्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का काफ़ी अच्छा पोर्शन है. इन दोज प्रोग्राम्स द कॉलेज वुड लुक फॉरवर्ड फॉर एक्सीलेंट स्कोर्स इन द क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेक्शन. उनको अच्छा स्कोर चाहिए इन द क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विच शुड बी एटलीस्ट अबव 168 और 167. इससे कम स्कोर में काफ़ी बार कॉलेज रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशंस. सो योर स्कोर शुड बी हाई इनफ. अरे यार, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मैंने तो नीचे करना ही भूल गया. सर, लाइक फॉर मास्टर्स इंजीनियरिंग वी नीड गेट. डज फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज अप्लाइड एक्सेप्ट गेट फॉर मास्टर्स इंजीनियरिंग और डू देन फ्रेंड दे वुड रिक्वायर GRE only. Okay, they would require GRE only. Does GRE scores give an edge
if one plans to go to European colleges, countries like Germany? Answer is yes. Siddhant, all the countries give you an edge with the GRE or the GMAT exam. What is the usage of AWS in scoring is not considered. Usage of AWS, Sai Gaurav, the reason is why AWS is being checked or your analytical writing skills are being checked because they all ask for some essays. Okay, ये essay जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर सिलेक्शन प्रोसेस. ओके, नाउ इफ सपोजिटली आपका स्कोर आया 3 इन योर AWA वाला सेक्शन के अंदर में, वेयर एज योर एसे स्पीक कि ये तो एक्सपीरियंस लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मतलब बच्चा बहुत ही अच्छा है इन दी लैंग्वेज स्किल्स ऑल्सो, लेकिन वो आपके ऐसे वो डिफाइन नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज द पॉइंट दैट दे कंपेयर विद द AWA स्कोर्स कि यार देखो तो कि इस बच्चे का इंग्लिश लैंग्वेज स्किल कैसा है. हैज ही हिमसेल्फ रिटन, हैज ही कॉपीड इट, और ही हैज आस्क्ड someone else to write his essays. Okay, you can take the GRE. Okay, GRE happens throughout the year. Okay, and you can take the GRE exam 5 times in a year. 5 times in a year. Okay. Okay, there is something Aryan ने सिद्धांत को कुछ बताया है. I believe the answer to your question is no. European countries, especially Germany, focuses on their native language in their undergraduate, and for masters they need IELTS. Moreover, kindly confirm it from sir. See how it goes. If you are applying for Germany, okay, so Germany, there they use the German language, though the teaching is in the English language, but it is preferable that you should have at least level 2. Okay, there are multiple levels of the German language that you can learn, that you should have at least the level 2 understanding of the German language. Okay, like in this particular section also, many a times while I am interacting with you, I have used the Hindi language also. Okay, and you are able to understand it. So that is the way we are able to communicate ourselves slightly much more clearly as well as freely. That is the benefit of understanding the local language. So if you plan to go to Germany, so there you would require to have the level. It is preferable that you should have learned the German language for level 2. Okay. Part the sections in the GRE exam, they are intersectional computer adaptive. Okay, but as a section it is not computer adaptive. So for example, quant 1 performance is going to decide the level of the quant 2 section, so that is where it becomes computer adaptive. Okay. Okay, Aryan is asking what is this ets.org. ETS is the body which conducts the GRE exam. They are the brain behind the GRE exam. Okay. Is it section wise? Yes, it is section wise adaptive. GRE applicable to arts and humanities, etc. Yes, it is applicable for arts and humanities courses also. एंड दैट इज वेयर आई स्पोक. अगर आपको एक नीडल बनाने की टिप बनाने से लेके एरोप्लेन बनाना है तो आपको GRE का एग्जाम लिखना पड़ेगा. इट इज कंडक्टेड. ओके, विच यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट द GRE एग्जाम. देखो आप इंडिया में हैं तो आपको इंडिया में GRE एग्जाम इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सेप्ट समथिंग लाइक ISB जो GMAT या फिर GRE ही मांगता है. फॉर रेस्ट अदर यूनिवर्सिटीज आपको इंडिया में GRE एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. यू कैन अप्लाई टू दोज. अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं पर इंडिया में आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो देन यू नीड टू टेक द GRE एग्जाम. ओके, देन यू नीड टू टेक द GRE एग्जाम. इन इंडिया, फॉर अप्लाइंग टू इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन कैंडिडेट्स नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द GRE स्कोर्स. इंटरनेशनली आपको पढ़ने जाना है तो वहां पे आपको GRE का स्कोर चाहिए ही चाहिए.
Siddhant is asking a question. Okay, I want to know how much value does it provide if one applies to a program in Germany. अगर आपको जर्मनी में भी अप्लाई करना है तो आपको जीआरई का स्कोर चाहिए. क्लियर? What is good percentage in college for getting admission in a good college for masters? Okay, देखो यार, ये मास्टर्स प्रोग्राम्स वगैरह जितने भी है ना, दे ऑल आर एकेडमिक प्रोग्राम्स. ओके, स्पेसिफिकली दोज विच आर स्टेम प्रोग्राम्स. जितने भी स्टेम प्रोग्राम्स है ना, ये सारे ही एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं. तो जितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस है ग्रेजुएशन में, ठीक है, और आपके अंडर ग्रेजुएट में, उतना अच्छा है जसकरण, और उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं और स्कॉलरशिप मिलने के चांस होते हैं. ठीक है, तो एकेडमिक परफॉर्मेंसेस आर रिक्वायर्ड. बट अगर आपको बाहर के कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो 50% एंड अबव इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. 60% प्लस इज एन एवरेज परफॉर्मेंस. 70% plus is a good performance. That is what you can broadly justify. Okay. The fees is around 14,000. Isn't there any concession on the same or any type of scholarship for application criteria? RN fees remain same, be it GMAT और GRE, दोनों की फीस जो है इतनी रहती है, कोई कंसेशन नहीं है. For example, GMAT is $250 and GRE is $200. हाँ, अगर आप आजकल GMAT ने एक ऑप्शन फ्लोट करा हुआ है विच इज यू कैन टेक द GMAT एग्जाम एट योर होम. अगर आप वो ऑप्शन यूज करते हैं, so there they are charging you $200 for the GMAT exam. Okay, Sai Gaurav has asked one question. When does spring and fall admission start? Spring are the ones which start in the month of when your classes start in the month of January or February. Okay, that is known as spring. Fall are the one when your classes start in the month of August, September, October in the colleges. ठीक है, तो these are known as spring and the fall. अब इनके एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं? एक साल पहले इनके एडमिशन स्टार्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल, स्प्रिंग ऑफ 2021, तो स्प्रिंग ऑफ 2022 लेते हैं क्योंकि 2021 का स्प्रिंग इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ. तो फॉर द स्प्रिंग ऑफ 2021 आपको इस साल जो कमिंग 2020 सॉरी फॉर द स्प्रिंग ऑफ 2022, जो अभी स्प्रिंग ऑफ 2021 आएगा, जनवरी फरवरी 2021 आएगा, तब आपको अप्लाई करना है कॉलेजेस में. इवनिंग स्लॉट टाइमिंग फॉर द GRE is 3 PM. Which is the safest country? USA. Total marks for the GRE exam is 340. 340 में से आपको 330 लाना है. Okay. Does time provide any short term preparation? 3 महीने का प्रोग्राम है, इससे छोटा प्रोग्राम नहीं प्रोवाइड करते. वो क्रैश कोर्स होते हैं, वो प्रोवाइड नहीं करते यार, क्रैश कोर्स नहीं कराते. Sir, is CGPA 7 enough for our application? As I have been told by CGPA 7, answer is yes. Siddhant, answer is yes. CGPA 7 is good. How to apply to universities? ये अभी हम थोड़ी सी देर में आगे देखेंगे. How to apply to university? Is it feasible? Or like do people get 330 out of 340? आसान है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है according to the exam pattern and the paper structure. बस वो प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. For both the exams, GMAT and GRE, ठीक है. ये ज्यादा देखो, इनमें हमारे को फायदा क्या होता है? एक तो ज्यादा हमें मुश्किल इसलिए नहीं लगती क्योंकि हमारा क्वांट स्ट्रॉन्ग है, हम 50% ऑफ द पेपर करके बैठे हैं. दिस इज पॉइंट नंबर 1. कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उसको दोनों पेपरों में डिफिकल्टीज आती हैं. ठीक है, उसको दोनों पेपर्स में डिफिकल्टी आती है. जैसे आप लोग खुद ही देखो कि भाई अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूँ कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आंख मतलब मुंह उठाता है और पहला आंसर देता है मैथ्स. समवेयर अराउंड 80% ऑफ द क्लास इज मैथ्स. लेकिन आप ये भी देखिए, आपने मैथ्स में कितनी मेहनत करी है थ्रू आउट योर लाइफ. स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, एवरीवेयर यू हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू स्टडी दी मैथ्स. ओके, तो मैथ्स इसलिए हमें आसान लगता है. इंग्लिश में हमने फोकस कम करा है. इंटरनेशनल स्टूडेंट ने मैथ्स पे कम फोकस करा लेकिन इंग्लिश में ज्यादा करा, तो ये फर्क ज्यादा हो जाता है. ठीक है. Bani Kaur is asking which is the cheapest country to go for abroad studies.
See, there is nothing like called as the cheapest country, though there are a lot of people who would say कि जर्मनी चले जाओ, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, लेकिन लिविंग कॉस्ट होती है। ऐसे एजुकेशन फ्री वाली बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। ओके, हर किसी कंट्री में आपको कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स ऐसे मिलते हैं जो कि ऑलमोस्ट फ्री टाइप ही होते हैं। ठीक है, तो जर्मनी भी पूरा फ्री नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कॉलेज है, एमबीए का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक कॉलेज है इंडिया में विच इज नोन एज एफएमएस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। उसकी फीस जो है 1 साल की आती है करीबन 1 लाख रुपए टाइप ऑफ। ठीक है, और वहीं हमारे जो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा है, उनकी फीस 1 साल की आती है समवेयर अराउंड 24 lakhs, 20 lakhs ऐसे। तो बहुत सस्ता है ना एफएमएस। और प्लेसमेंट देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही आती है, 22, 24, 25, 28 lakhs ऐसे प्लेसमेंट्स आती हैं। तो फ्री वाला फंडा थोड़ा सा कम चलता है कि कौन सा प्रोग्राम अच्छा है, उस अच्छे प्रोग्राम में जाया जाए। जैसे एक बच्चा यहाँ पे बार बार MIT के बारे में पूछा है मुझे, तो MIT की फीस देखोगे तो समवेयर अराउंड 1 crore rupees and it can go up to 1.5 crore rupees. But that should not be a deterrent till the moment if you deserve and you make it to MIT. अगर आपको MIT में मिल गया तो आपके पहले साल की सैलरी आपके खर्चा, लिविंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ कवर अप कर देती है, और आप जिंदगी भर 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाते हो पर ईयर। तो वो चीज बात अलग है, इसमें फ्री और फीस वाली कहानी ज्यादा होनी नहीं चाहिए। इट इज अबाउट द प्रोग्राम इंटरेस्ट, आप क्या करना चाहते हो, दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। ओके, टाइम, प्रोग्राम और कोर्स फीस। आर्यन आगे कोर्स फीस थोड़ा मुश्किल है मेरा बताना, लेकिन आई कैन टेल यू, आप अपना नंबर दे दोगे तो माय टीममेट इज आल्सो देयर, ही वुड आस्क समवन एल्स टू कनेक्ट विद यू। ठीक है, my CGPA is 7.8. Do we get scholarships? Yes, you get scholarships based on your CGPA, your GRE score, your essays, and your LORs. Okay, चलो मूविंग फर्दर। तब तक आपके दिमाग में और कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आप वो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, कंट्रीज एडवांटेजेस, अगेन कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ GRE। तो थ्रू आउट द ग्लोब these courses are accepted. There is a feature mark and review. ठीक है, तो जैसे कि बुक मार्क कर देते ना, वैसे एक फीचर आता है GRE में, सो यू कैन गो बैक। ये मेंशन इसलिए करें, GMAT में फीचर नहीं होता। GMAT में आपको जो क्वेश्चंस करने होते हैं दे आर इन अ लीनियर फॉर्मेट, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चलता रहता है। आप कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते और कोई क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, एंड देयर इज एन ऑल्सो एन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर ऑन द QR सेक्शन। हमें जरूरत नहीं पड़ती, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर की जरूरत इंडियंस को नहीं है। देखो, मैं बार बार इंडियंस को बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया वालों के हिसाब से आसान है चीज़ें। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स GRE के थ्रू मिलते हैं, समथिंग लाइक MIS, MEMS, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, PhD एक्सेट्रा। बहुत प्रोग्राम्स हैं, मतलब प्रोग्राम्स इतने कि लिस्ट आउट करते करते आप 4 दिन लगा सकते हैं, इतने प्रोग्राम्स होते हैं GRE के थ्रू। सो लेट अस स्टडी द मेन प्रोग्राम्स। MIS, मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपने सुना होगा MIS रिपोर्टिंग। तो दिस इज व्हाट इट इज, एन होलिस्टिक रिपोर्ट प्रिपरेशन विच इज शोन टू द मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से एन MIS इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके पीछे बहुत एक एनालिटिकल थॉट प्रोसेस चाहिए होती है, काफ़ी सारे चीज़ों को इनकलकेट करके टुगेदर एक MIS बनाया जाता है। ठीक है, और इसके आप समझ सकते हो कि MIS इज द वन जिसपे दुनिया की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टिकी हुई है, नहीं तो दे वोंट हैव सर्वाइव्ड। ग्लोबलाइजेशन MIS के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वेयर ऑल द IT मैनेजर्स, बिजनेस एनालिटिक्स, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्राम इन हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, मार्केटिंग, आप जो चीज़ सोच सकते हो हर चीज में MIS है। फॉर एग्जाम्पल इन आवर ऑफिस वी यूज एन MIS सिस्टम। हमारे पास एक MIS सिस्टम है, वी यूज इट। तो हमें वो MIS को डेली फिल करना था, तो हमें पता रहता है कि पिछले 10 साल 15 साल में क्या रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस विल एक्सेप्ट द GRE स्कोर फॉर एन एडमिशन इनटू MIS कोर। और फीस कितनी वेरी करती है, इट वेरीज फ्रॉम $20,000 एंड इट कैन गो अप टू $35,000 ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो आप। ठीक है, 14 लाख से लेके it can go up to 35 का मतलब कितना हुआ, another 10 lakhs। ठीक है,
तो 25 lakhs तक की फीस है, एंड इट इज अ 1 year प्रोग्राम, एंड इट इज अ 1 year प्रोग्राम। क्लियर? तो MIS बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आई वुड सजेस्ट, इफ यू गॉट एन इंक्लिनेशन फॉर लर्निंग MIS प्रोग्राम्स, काइंडली डू सो। ठीक है, देखो कुछ यूनिवर्सिटीज आप देखोगे जैसे कार्नेगी मेलन, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, ठीक है, शिकागो, दीज आर सम ऑफ दी, जैसे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी JHU, ये कुछ ऐसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास, मतलब आप समझो कि हर कोई प्रोग्राम है इनके पास। कार्नेगी मेलन, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज, ये इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके पास दुनिया के सारे प्रोग्राम्स हैं, और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज यूएस में हैं। तो यूएस इज द हब फॉर रिसर्च, यूएस इज द हब फॉर रिसर्च। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना, टेक्नोलॉजी बनती कहाँ पे है? यूएस में, और उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए उसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ पे बनते हैं? वो दुनिया भर में। जैसे पिछले टाइम पे अभी चाइना वॉज द ग्लोबल रॉ मटेरियल प्रोवाइडर। ठीक है, तो हम कहते थे ना भाई, फोन की टेक्नोलॉजी एप्पल ने कहाँ पे बनाई? यूएस में। वो उसने चाइना में बोला कि मेरे को ये पार्ट्स चाहिए, आप मुझे दोगे? तो चाइनीज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने उनको वो पार्ट्स बना के दिए। ठीक है, तो एप्पल ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो पार्ट्स के अंदर यूज करी ना, उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी तो नहीं देती कि देखो एप्पल की टेक्नोलॉजी और आप ले जाओ, ऐसा तो नहीं करा। तो एप्पल ने अपना जो भी उनका iOS है उसको अपने पास इंटैक्ट रखा हुआ है। तो जो दिमाग, जो उसके अंदर जो पूरा दिमाग जो जाता है वो एप्पल ही फीड कर रहा है उसके अंदर में। ठीक है, तो वो एप्पल ही भर रहा है उसके अंदर। तो दैट इज वेयर दैट यूएस में क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। रिसर्च आइटम्स की प्राइस जो है ज्यादा होता है। जैसे आप आपने केमिस्ट से दवाई लेने जाते हो, तो जो ब्रांड्स होती हैं उनकी दवाइयाँ महंगी होती हैं। अगर आप जेनरिक मेडिसिन खरीदने जाओगे तो वो सस्ती होती हैं। जेनरिक मेडिसिन आर नथिंग बट दे आर दी कॉपीज ऑफ दोज ब्रांड्स। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन आर नथिंग बट दी कॉपीज ऑफ दोज ब्रांड्स। तो कॉपीज सस्ती मिलती हैं, जो एक्चुअल जो कंपनी बनाती है, ब्रांड बनाती है, वो दवाइयाँ महंगी होती हैं। ठीक है, तो कमिंग, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इधर। Most of the students face difficulty in reading comprehension questions, so what is the advice on how should they start their RC preparation most effectively? For RCs, first and foremost is inculcating a good reading habit. आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, एंड ऑन वेरिड एरियाज। खाली जैसे स्पोर्ट्स किसी को पसंद है तो ये नहीं कि मतलब रोज ही स्पोर्ट्स वाला सेक्शन उठाया और पढ़ते का, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्टडी वेराइटी, you have to study a lot of variety, history, technology, science, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, geography वगैरह के सब kind of passages you have to study so that you are able to understand कि वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, और अगर उनको कल को आंसर करना तो आंसर कैसे करूँ मैं। तो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि उनको पढ़ना, उनके जो वर्डिंग्स होते हैं उनको समझना, और अगर आपने उस टाइप का कुछ पढ़ा नहीं है तो आप आंसर भी नहीं कर पाओगे। RN is asking, do research papers matters while applying for masters in STEM courses? Answer is yes. If you got research papers and if they are published, so they help you. ठीक है, ठीक है। How can we get full scholarship? Full scholarship is based on your GRE scores, based on your essays, based on your research, based on your interest, based on your academic scores. ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, देन कमिंग टू जो सबसे कॉमन है, जैसे बच्चे से किसी से पूछो भाई आप, मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ, अच्छा क्या करना चाहते हो? मैं आई वांट टू डू MS करना चाहता हूँ। तो MS का मतलब क्या है? तो MS का मतलब इज मास्टर ऑफ साइंस। इंटरनेशनली जो है MS, जैसे इंडिया में बहुत सारे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट होते हैं, तो बाहर की कंट्रीज में उनको भी MS कहते हैं। जैसे MS इन मास्टर ऑफ साइंस इन आर्ट्स, आपने सुना है कभी ऐसे? MS इन इंग्लिश, Master of Science in English. So you do go abroad and you do an MS in English. Okay. MS in Finance. MS in Finance सुना आपने? Master of Science in Finance. तो ये भी होते हैं। तो विचार, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं आप, तो these are the common MS courses that you do.
मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ फार्मा, मास्टर ऑफ आईटी, मास्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो आपका जो इंटरेस्ट है आप वो वाला मास्टर्स प्रोग्राम पिकअप करके करते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं होता कि सपोजिटली आप इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो अभी एंड यू सडनली थिंक अबाउट कि यार चलो मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने सिविल सर्विसेज सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है अपनी ग्रेजुएशन में तो आपको सिविल इंजीनियरिंग ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सो देयर हैज टू बी अ लिंकेज इन व्हाट यू आर स्टडिंग प्रेजेंटली एंड व्हाट यू वांट टू स्टडी लेटर ऑन। अगर वो लिंकेज मिसिंग है तो आपको डिप्लोमा प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं in order to bridge the gap between your program and what you want to do next. वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। Okay, there is an option for MS in engineering and management. Okay, MS in engineering and management. तो इसका फायदा क्या है? This gives an engineering candidate. Okay, जैसे if you are an engineering candidate, तो इंजीनियरिंग कैंडिडेट को एक एडिशनल ऑप्शन मिलता है to study management also and along with that utilize his engineering fundamentals also, okay, and utilize his engineering fundamentals also. For example, if there is a candidate जो आज की तारीख में टेलीकॉम में जाना चाहता है और ही वांट्स टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है या फिर इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग करी है, तो उसको दो किस्म की जॉब्स मिल सकती हैं। या तो कोर में जॉब मिल सकती है, कैन ही गेट आफ्टर डूइंग एन मैनेजमेंट प्रोग्राम अ टेक्निकल जॉब विच हैज मैनेजमेंट प्लस टेक्नोलॉजी, बोथ द थिंग्स। हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स जो MEM प्रोग्राम्स के अंडर में आते हैं which give the candidate both the trainings which is engineering and management का एक amalgamation। तो आप दोनों चीजें simultaneously पढ़ते हो और ये भी समझते हो how you can use your engineering know-how along with management to get the best out of what you are going to do in whatever technical companies। okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। और आज की तारीख में इसकी डिमांड बहुत है। आई एम टेलिंग यू, आज की तारीख में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। एंड कोर्स ड्यूरेशन इज 12 to 24 months। फीस थोड़ी सी हाई है इसकी, which is $30,000 to and can go up to $70,000। okay, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे जो बच्चों ने लिखे हैं। गगनदीप इज आस्किंग what are good universities in Canada accepting GRE? There is a university by the name of McGill, which is a very good university. There is a university by the name of University of Toronto, so you can apply to that। okay, so these are, there is a university McGill in Toronto, there is a university by the name of Quebec, ठीक है। Quebec is also a state and you can apply for programs in Quebec also, so आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। there are many universities, ठीक है। University of Ottawa is there, ठीक है। there is a University of Simon Fraser in which you can apply, ठीक है। so there are lot of, there is a University of Ontario। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर में कॉलेजेस होते हैं। बड़ा सिंपल सा है, जैसे आपका कॉलेज है ये किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है ना। इज इट IP यूनिवर्सिटी? योर कॉलेज कम्स अंडर IP यूनिवर्सिटी और विच यूनिवर्सिटी? एनीवन? योर कॉलेज IP।
तो आईपी के अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस है ना, तो जब आईपी यूनिवर्सिटी के लिए आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, तो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कॉलेज मिला, या फिर आपने चूज करा कि भी मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके हिसाब से पिकड अप। तो सिमिलरली इंटरनेशनली भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, और उन यूनिवर्सिटीज के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। आईपी के यूनिवर्सिटी के अंदर कितने सारे कॉलेजेस हैं मेरे ख्याल से, योर कॉलेज इज देयर, देन देयर इज एमएसआईटी, देन देयर इज दिस कॉलेज एमएआईटी आल्सो अंडर योर आईपी यूनिवर्सिटी ओनली, है ना। देन देयर इज दिस आईआईटीएम, ये भी शायद आईपी के अंडर में ही है। तो काफी सारे कॉलेजेस हैं, काफियों का मेरे को तो पता भी नहीं, नाम भी नहीं पता, लेकिन बट देयर आर मेनी कॉलेजेस। तो सिमिलरली हर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। अब आप किस कॉलेज में जाके लैंड अप करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन, बेस्ड ऑन योर जीआरई स्कोर्स, बेस्ड ऑन योर एसेस एंड बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की तारीख में है कॉलेज, कि आप किस कॉलेज में जा रहे हो। ठीक है, तो एमईएम के प्रोग्राम्स देख लेते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। So these are some of the programs which are being offered by, these are some of the universities or the colleges which are offering the MEM programs. Okay, this one is Duke, D-U-K-E, Duke University. Okay, there is Cornell Johnson, Stanford, there is Dartmouth University. तो काफी सारे यूनिवर्सिटीज। अच्छा, आप स्कोर्स भी देख सकते हो, साथ के साथ स्कोर्स भी हैं, 325 to 340, 325 to 340, 334 टू, देखो कॉर्नल है, दूसरा टॉप यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है कॉर्नल जॉनसन। तो इनका स्कोर रिक्वायरमेंट 334 टू 340, और एक्चुअली 340 लाना भी मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ाई करो। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट 340 आउट ऑफ 340। इट इज प्योरली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम एंड टेकिंग इट, और ये पॉसिबल है 2 से 3 महीने में प्रिपरेशन हो जाती है। अच्छा, देयर इज अनदर एग्जाम व्हिच इज मास्टर्स इन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। देखो, अब देयर आर लॉट ऑफ इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स जो कि फाइनेंस पढ़ना चाहते हैं, और फाइनेंस पढ़ने से उनको फायदा क्या होता है। फाइनेंस की बहुत सारी स्ट्रीम्स ऐसी हैं जिसके अंदर काफी सारे मैथमेटिकल टूल्स का यूसेज होता है, जो कि यूजुअली जो हमारे रेगुलर अकाउंट्स पढ़ते हैं बच्चे या फिर बीकॉम वगैरह करते हैं, दे आर नॉट दी वंस जिनको इतने टफ जो मेथड्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं, उनको यूज करना नहीं आता। सो देयर इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, और मोस्टली जो आगे जाके जो बच्चे जॉब्स पिकअप करते हैं ना, तो दोज आर वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। जैसे हो गया आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स, देन देयर इज समथिंग ऑन आपका कंसल्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आपकी जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं, दे आर दी वंस व्हिच आर बीइंग ड्रिवन बाय फाइनेंशियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंस और इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमेशा रहा है। और आप देखोगे इंडियन बी स्कूल्स में भी देयर आर लॉट ऑफ इंजीनियर्स हु अप्लाई फॉर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एंड दैट टू इन फाइनेंस। तो इन सबको एक एडवांटेज इसलिए भी मिलती है बिकॉज दे आर वेरी गुड ऑन दी एनालिटिकल फ्रंट्स। ठीक है सर, व्हाट आर दी बेस्ट बुक्स टू प्रिपेयर फॉर जीआरई वर्बल एंड आरसी क्वेश्चन। सिद्धांत, काइंडली विजिट ईटीएस की वेबसाइट, तो वहां पे एक वो ऑफिशियल गाइड इशू करते हैं, दैट इज द बेस्ट इफ यू वांट टू रेफर इट ऑन योर ओन। तो दैट इज समथिंग दैट आई कैन रिकमेंड यू, दैट इज द वन यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर। मैनहट्टन वगैरह बहुत सारे हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, देयर आर लॉट ऑफ। ऐसे तो टाइम भी है, जैसे मैनहट्टन प्रेप है, ऐसे तो टाइम प्रेप भी है। तो टाइम का तो और भी ज़्यादा रिसर्च मटेरियल होता है, और ज़्यादा भी मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा, बोथ द थिंग्स। ठीक है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स स्पेसिफिकली इन कनाडा। पहले तो आप ये सिमरन पहले ये सोचो कि एंटरप्रेन्योरशिप किस चीज़ में करना चाहते हो। अगर आप फाइनेंस पढ़ना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कनाडा इज एन एक्सीलेंट चॉइस। कनाडा में अकाउंट्स, फाइनेंस, इस टाइप की बहुत जॉब्स हैं इंजीनियरिंग के साथ साथ। ठीक है, सो विच आर द यूनिवर्सिटीज विच आर ऑफरिंग यू दीज प्रोग्राम्स। कार्नेगी मेलन, देखो मैंने कुछ बोला ना, कुछ यूनिवर्सिटी तो बड़ी स्टैंडर्ड है,
हर जगह आपको मिलेंगी, कार्निगन मेलन, प्रिंसटन, कोलंबिया स्टेट यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, स्टैनफोर्ड, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। सो देयर आर मेनी। तो पहला काम तो दोस्त है कि पहले तो सबसे पहले एक अच्छा जीआरई का स्कोर लाना, दैट इज द फर्स्ट जॉब। अगर आपने ये जॉब कर लिया तो आप समझो कि आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं जा सकते। जब तक स्कोर नहीं आता तब तक तो बाकी सब चीजें ख्यालों में ही चलती रहेंगी और टाइम निकल जाएगा ऐसे ही। जब तक स्कोर आए, जिस दिन स्कोर आएगा ना, उस दिन एडमिशन की बात होती है कि भाई इतना स्कोर आया, अब कहाँ जाया जाए। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत सारी चीजों के ख्याल बनाए होंगे, सोचा होगा करने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स भी दिए होंगे, लेकिन फाइनली जाके आपने एक आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया विच गेव यू दिस गुड इंस्टीट्यूशन विच इज नोन एज जीटीबीआईटी। और जीटीबीआईटी आज की तारीख में आपको इतना अच्छा एक इंटरफेस दे रहा है सो दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट। तो आज भी मैं आपको दोस्तों यही सलाह दूंगा दैट काइंडली स्टार्ट। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हो या कुछ भी आप करना चाहते हो तो उसके लिए पहले एक प्रिपरेशन करनी शुरू करो और एक अच्छा स्कोर लाना शुरू करो। स्कोर जिस दिन आएगा ना, आप देखना सारे रास्ते उस दिन खुल जाएंगे। ठीक है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कमिंग बैक, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में काफी सारी चीजें स्टैंडर्ड होती हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस व्हाई यू वांट टू डू दिस प्रोग्राम, ठीक है, एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स, आपके मार्कशीट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपके पास कितना पैसा है, व्हाट इज द सपोर्ट दैट वुड बी रिक्वायर्ड, GRE and TOEFL scores. These are not, GRE scores are mandatory, TOEFL and IELTS scores are not mandatory. अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो दैट वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सर्टिफिकेट्स एंड योर पब्लिकेशंस। आई थिंक सिद्धांत asked this question or Aryan asked this question, what about research papers? So you require your publications also. एंड योर पासपोर्ट टू अप्लाई। तो ये सारी चीजें अलॉन्ग विद योर स्कोर आपको सबमिट करनी पड़ती हैं फॉर एडमिशंस। अच्छा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। इन जीआरई देयर इज नो इंटरव्यू, जीआरई सिलेक्शन प्रोसेस देयर इज नो इंटरव्यू। मैंने पहले बोला था दीज आर एकेडमिक प्रोग्राम्स। एकेडमिक प्रोग्राम होने की वजह से यहाँ पे आपका प्योर सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन योर एकेडमिक्स। आपका जो क्यूमुलेटिव स्कोर बनेगा ना इसमें, इन ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इज गोइंग टू आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन डिफाइन करेंगे। क्लियर? व्हाट टाइम ऑफर्स? वी ऑफर यू 96 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, 52 फॉर वर्बल, क्वांट के लिए 30, AWA 10, इंट्रो क्लास होती है एक, और LOR एंड SOP के 2 सेशंस, ठीक है। प्लस दिस इज व्हाट वी ऑफर यू इन दी बुक्स, वर्बल बुक, क्वांट बुक, ठीक है, हैंडआउट्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट बिफोर दी योर क्लास स्टार्ट्स, compensatory or the backup classes, extra classes, online access, ठीक है। So you get 15 computer adaptive test, जैसे GRE का एग्जाम होता है, 16 sectional test, ठीक है, क्वांट के, और 16 वर्बल के, और 26 टॉपिक वाइज टेस्ट। गगनदीप, यार मेरे को एग्जैक्टली ना GRE की फीस पता नहीं है। इफ यू कैन जस्ट ड्रॉप इन योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। There is Gagandeep is asking me this, and there was one more student who has asked this question about the time fees. तो दोस्त मेरे को ना फीस के बारे में नहीं पता। अगर आप अपना नाम नंबर चाहे सचिन को दे देना, ठीक है, या फिर आप इधर ही टाइप कर दो, तो आई कैन फॉरवर्ड इट टू माई टीम, तो दे कैन कनेक्ट यू फॉर दी अबाउट दी फीस एंड दी अदर थिंग्स, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। ओके गगनदीप, आई विल गेट एन कॉल अरेंज्ड फॉर यू, ठीक है। देयर वाज अनदर स्टूडेंट आल्सो जो कि पूछना चाह रहा था, सर सो बेस्ट बुक्स विल बी ऑफ ETS। आंसर इज यस। देखो सिद्धांत बड़ा सिंपल सा यार, अगर आप
स्कूल के सीबीएसई बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो द बेस्ट बुक इज एनसीईआरटी। तो वैसे ही और किसी पब्लिकेशन का नाम लेने के बजाय आई कैन ओनली गाइड यू टू दी ऑफिशियल बुक्स। उसके बियॉन्ड अगर आप मेरे से पूछोगे तो दैट इज द टाइम मटेरियल, ठीक है। और टाइम मटेरियल बहुत एग्जॉस्टिव है, टाइम की एक फिलॉसफी है दैट वी टीच यू मोर एंड वी ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ मटेरियल। तो दोनों फिलोसफीज जो हैं दे आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। देयर वाज वन मोर स्टूडेंट हु वाज आस्किंग अबाउट दिस, आर्यन। तो आर्यन, अगर आप भी अपना नंबर शेयर करना चाहते हो तो आई कैन शेयर योर नंबर विद माई टीममेट, तो आप भी पूछ सकते हो अपना क्वेरीज जो भी रिगार्डिंग फीस वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है। सिद्धांत को भी आई वुड सजेस्ट यू कनेक्ट विद द टाइम टीम वंस, अगर आपको लगता है दैट यू रिक्वायर कोचिंग तो कोचिंग कर लो। भाई आगे जाके भी तो एक एग्जाम देना पड़ रहा है ना जो 14,000 रुपये का है। rather than risking your exam, it is always better to prepare and give. हमारी फीस भी कोई मतलब मेरे ख्याल से इस एग्जाम की फीस वुड नॉट बी मोर देन 20,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगी। ओके, एनी फर्दर क्वेश्चंस? सिद्धांत, गगनदीप, anyone would like to ask any questions, they can surely ask. Sai Gaurav, Sachin, Parth Kohli, Aryan, anyone has some questions? Bani, you can ask your questions in the chat box or you can unmute your mic and ask. Okay, I think all of you are also done with the questions. Thank you very much. Sorry, sir, to interrupt for one question. हाँ पार्थ, Sir, if someone has a backlog in the pre-final year semester, like if I want to apply in October and I have a backlog or an absent in my previous semesters, so can I apply? हाँ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिस दिन ग्रेजुएट हो गया उस दिन तो बैकलॉग खत्म हो जाएगी ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ उस दिन अटका मत देना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। No, sir. It's just an absent. I was not able to give the exam. That's why. दैट इज वेयर एब्सेंटिज्म के लिए भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए। दैट इज व्हाट जीआरई एंड द जीमैट एग्जाम्स गिव यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आप एब्सेंट हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई सजेस्ट। Yes, sir. Right. चलो, Thank you, sir. ओके, ऑल द बेस्ट। All right. Thank you, sir. All right. So thank you so much, sir. It was a great session. It was very informative. Hello. ओके, थैंक यू वेरी मच सचिन। Yeah. So before we conclude, I must remind you this is a series of webinars. Our last webinar, last and final webinar is on next Wednesday, same time. The topic of the webinar is case study interviews. For regular updates, you may join our WhatsApp group, link in the chat. I'll send the link in the chat right now. This is exclusive for GTBIT students. Others and also the GTBIT students, you may connect us with our social media handles, one of which is Instagram with the same name, GTBIT Finishing School. And you may follow us on LinkedIn also. The registration links will be shared soon. And so see you then. Thank you.